Hello class 10th. Now today in this session we are going to discuss about the change of phases. So it is the second part of the calorimetry. Calorimetry का second part है. It is important chapter once again. So let us start with the chapter. In this session we are going to discuss about the change of phases and about the latent heat. Okay, latent heat के बारे में हम लोगों ने बात करना है. Specific heat and thermal heat capacities we have talked about, but now in this session we are going to talk about the latent heat or specific latent heat. Specific latent heat और latent heat के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. So let us start our session. First of all, the change of phases. So what do you mean by change of phases? As you know, there are three states of matter. The first one is the solid state. एक तो solid state है और एक क्या है liquid state है, and third one क्या है is the gaseous state. These are the three states of matter. Now you know very well that when solid changes into liquid form, then the process is called melting, and similarly when liquid changes into solid form, the process is called freezing. So these are the change of phases. Solid से liquid में चला गया, liquid से solid में चला गया. These are change of phases. Similarly, we have another process when solid changes into a gaseous state. The process is called sublimation. That means solid changes into gaseous state without changing into the liquid state. Directly it is converting into a gaseous state. The process is called the sublimation. Similarly, we are having another process in which gas changes directly into solid form without changing into liquid state. That process is called solidification. So we are different process, different change of states. Now one similarity in these change of state is that during the change, the heat which we are giving, it does not help the body or does not help the state of matter to increase its temperature. What I mean to say, I simply mean to say कि suppose we are having a ice cube. हमारे पास एक ice cube है and this ice cube is melting. ये ice cube क्या कर रहा है? Melt हो रहा है, continuously melt हो रहा है. So melt हो रहा है तो that means it's required heat. Heat हम लोग continuously दे रहे हैं, heat को वो absorb कर रहा है and it's continuously changing into the liquid state. So during the whole change, जब तक कि पूरी की पूरी ice convert नहीं हो जाएगी liquid state में, तब तक temperature rise नहीं करेगा. So where does this heat goes? हम लोग heat दे रहे हैं तो where does its heat goes? तो this heats help the state to change its state. Means कि जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, it helps the body to change its state. अपनी स्टेट को चेंज करने में उसकी हेल्प कर रही है. और in other words we can say the heat which we are giving, it is utilized during the change. पूरी की पूरी हीट कहां पर यूटिलाइज हो रही है? During the change. So this heat which is going to which produce the change is called your latent heat. Latent heat क्या है? Latent heat is nothing but it is the heat required by the body to change its state. अपनी state को change करने के लिए जो heat required है, that is called the latent heat. Okay, now when solid changes into the liquid state, जब solid liquid में change करेगा या लिक्विड जब सॉलिड में चेंज करेगी, और वी कैन से व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दिस सॉलिड टू चेंज इटसेल्फ इनटू द लिक्विड स्टेट. जो भी हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, अगर जस्ट इसका उल्टा अपोजिट हम लोग कर दें, मीन्स के अब उतने ही अमाउंट सॉलिड को पहले हमने लिक्विड स्टेट में चेंज किया. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग दिस लिक्विड इनटू द सॉलिड स्टेट. देन व्हाट हैपन, जितनी हीट उसने एब्जॉर्व करी है उतनी हीट वो रिलीज करेगा ड्यूरिंग द अपोजिट ऑफ द प्रोसेस. जब प्रोसेस को आप अपोजिट करेंगे, मीन्स के जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, आपने हीट दी, अब उतनी हीट क्या होगी? रिलीज होगी जब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा. नाउ लेट अस सी एक छोटा सा चेंज देखते हैं, हीट कर्व देखते हैं किसकी, फॉर आइस
initially at 0 degree. एक say this is the time, ये टाइम एक्सिस है, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया, एंड दिस इज द टेम्परेचर टेकन ऑन द वाई एक्सिस, टाइम को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, और वी हैव टेकन द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. सो यहां पे टेम्परेचर कितना है, सेड इज 0 डिग्री, टेम्परेचर इज 0 डिग्री. देन आफ्टर दिस 10 डिग्री हो गया, आफ्टर दिस 20 डिग्री हो गया, आफ्टर दिस 30 डिग्री हो गया, आफ्टर दिस 40 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन. सो 0 डिग्री से आइस स्टार्ट हुई, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, then 6, then 7, then 8, and then 9, then 10, and so on. So यहां से आपने हीट एब्जॉर्ब करना उसने स्टार्ट किया, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, मेल्ट होती जा रही है, होती जा रही है, होती है, मेल्ट हो रही है. सो पूरी की पूरी सपोज यहां पर मेल्ट होगी. अब क्या होगा, टाइम जैसे इंक्रीज करेगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे वो पूरी की पूरी आइस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी. मींस के वो यहाँ पर आइस थी, यहाँ पर क्या हो गया 0 डिग्री आइस पे था, यहाँ पर क्या आ गया 0 डिग्री वाटर पे आ गया. एंड आफ्टर दिस वाटर जब पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, देन द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली जब ये आपका 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, मीन्स सपोज यहां पर ये 100 डिग्री पे पहुंच गया, सो 100 डिग्री में अगेन देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज यहाँ पे फिर से जो लिक्विड वाटर है इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर स्टेट. अब लिक्विड क्या होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. अगेन द हीट विच वी आर गिविंग इट्स हेल्प्स द बॉडी और इट्स हेल्प्स द वाटर टू चेंज इट्स स्टेट. उसकी स्टेट को चेंज करने में उसकी हेल्प करेगा. इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. नाउ दो चीजें हैं, सपोज एक तो मेल्टिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. दूसरा एक लिक्विड फ्रीजिंग है जिसमें लिक्विड आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, दो प्रोसेस है, मेल्टिंग है और फ्रीजिंग है. सो एक तो हो गया मेल्टिंग, फर्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड सेकेंड वन इज फ्रीजिंग. सेकेंड वन इज फ्रीजिंग. सो लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज एंड pressure on these two process. इन दोनों प्रोसेस में what is the effect of pressure and what is the effect of adding impurities. means कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे then what is the effect on melting. impurities को ऐड करेंगे what is the effect on melting. what is the effect of on freezing, when, or we can say the freezing point. we can take it, don't take it melting. melting is the name of a process, we are taking as a melting point and freezing point. So on increasing the pressure, pressure को क्या किया, increase किया. pressure को मैं क्या कर रहा हूं, increase कर रहा हूं. so pressure को जब increase करूंगा, so what is the effect on the melting point. pressure को increase किया, what is the effect on the melting point. so the melting point of the substance which contract on melting. यहां पर भी दो फैक्टर्स आ गए हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ओके, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मेल्ट होने पे क्या करेंगे, दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मेल्ट होने पे एक्सपेंड करेंगे. तो द सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, देयर मेल्टिंग पॉइंट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस. और जस्ट इसका उल्टा, द सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर. इसमें उल्टा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा. प्रेशर इंक्रीज करने पे जो सब्सटेंसेस एक्सपेंड कर रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, तो यहां पे जो एक्सपैंड होने वाले सब्सटेंसेस है वो इंक्रीज होने पे, प्रेशर इंक्रीज होने पे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा. और जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनका प्रेशर इंक्रीज करने पे जस्ट उसका उल्टा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज. अब इंप्योरिटीज का भी इफेक्ट देख लेते हैं. ओके, इफेक्ट ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस बाय द प्रेशर ऑफ इंप्योरिटीज इन इट. सो जो मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेशर क्या करेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज. इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा.
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट कुल्फी व्हाट डज द कुल्फी मेकर डू, ही सिंपली ऐड सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट उसने ऐड कर दिया तो जो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट था इसका 0 डिग्री से -20 डिग्री पे चला जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ कुल्फी विल टेक प्लेस इजीली। सो ऑन एडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, उसका डिक्रीज करता है। सो दिस इज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर को हम लोग अच्छे से शुरू करने वाले हैं कल, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट इतना छोटा सा नहीं है, इट इज वेरी लेंदी, तो बहुत लेंदी है। सो वी हैव टू डिस्कस सम मोर फैक्टर्स ऑन दिस, then we have to start with the question answers and the numericals. So this is the little bit introduction and I think it is enough for today. Just go through it and then we will see on Monday what is latent heat. So for today, thank you very much.